خدا جو ہے استر کو رانی بنانے والا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم استر کی کتاب باب 1 اور اس کی آیت 16 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 1 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 2 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 9 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے استر کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 10۔ یہاں لکھا ہوا ہے، استر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، کیونکہ مردکی نے اسے تاکید کر دی تھی کہ نہ بتائیں۔ میرے بھائی اور بہن، ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہودی جو لوگ تھے، جو ان لوگوں کے دشمن جو ہیں پکڑ کے لے کے چلے گئے تھے، اور اینٹی سیمیٹزم یعنی کہ جو لوگ جو ہے مذہب سے چڑھتے ہیں اور مذہب کے خلاف کام کرتے ہیں، یہ اینٹی سیمیٹزم ہمیشہ سارے دنیا کے قوموں پہ لعنتی تھا، اور یہ ملک میں بھی تھا۔ مردکی کو یہ بات کا پتہ تھا کہ غیر قوم والے یہودیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں، اس لیے مردکی استر کو تاکید کرے کہ استر یہ نہیں بتانا کہ انہیں جو ہے یہودی کے خاندان سے ہے، یعنی کہ یہودی کے نسل سے ہے۔ تو یہاں استر کا خاموش رہنا یعنی کہ بالکل بات نہیں کرنا، مذہب کے بارے میں نہیں بتانا، ثابت کرا کہ انہیں اپنے مذہب کا انکار کری ہے، یعنی کہ خاموش رہنا مذہب کو انکار کرنے کے برابر تھا، کیونکہ ان کا مذہب تھا جس کے ذریعے سے ان لوگ جو ہیں غیر یہودیوں کے نظروں میں پہچانے جاتے تھے۔ تو جس وقت مردکی اور استر یہ بات سے خاموش تھے کہ ان لوگ یہودی ہیں، تو اس وقت ان لوگ اپنے مذہب کا انکار کرے۔ آسری کی زمین پہ رہنے کی وجہ سے ان لوگ خدا کے مرضی کے باہر تھے۔ یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات غور کرنا ضروری ہے کہ عورتیں اور مردوے آج جب خدا کے مرضی کے باہر ہیں تو ان کے پاس صرف تھوڑے سے لفظ ہیں اپنے ایمان کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ آیت 11 پڑھیں گے، اور مردکی ہر روز حرم سرا کے صحن کے آگے پھرتا تھا تاکہ دریافت کرے کہ استر کیسی ہے اور اس کا کیا حال ہوگا۔ میرے بھائی اور بہن، اگر آپ خدا کے مرضی میں ہیں تو یہ بات سے آپ اطمینان رکھ سکتے کہ خدا ہر چیز کو لے کے ہمارے اچھے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو مردکی خدا میں آرام نہیں لے رہے تھے، کیونکہ مردکی خدا کے مرضی کے باہر تھے، اس لیے مردکی پریشان ہونے کو لگے اور صحن میں بے چینی کے ساتھ ٹہل رہے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ استر کیسی ہے، انہیں آرام سے ہے یا نہیں۔ مردکی پریشان تھے، انہوں شاید یہ سوچے ہوں گے کہ کیا انہوں غلطی تو نہیں کرے استر کو خوبصورتی کے نمائش میں شامل کر کے۔ تو جو کام انہوں کرے اس کام سے بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں استر کے بارے میں فکر کرنے لگے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ان کی رات کی نیند بھی اڑ گئی ہوں گی۔ تو دوست، مردکی کی یہ حالت ہے۔ جب آپ خدا کے مرضی کے باہر ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی طاقت سے کام کر کے یہ نہیں بول سکتے کہ ہر چیز اچھی رہیں گی اور سکون کے ساتھ کام ہوگا۔ اس وقت مردکی اپنے پریشانی کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں نہ رکھ سکتے تھے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت خدا کے خیال کرنے کے بارے میں معلوم تھا ہوگا، مگر کیونکہ مردکی یہ پریشانی کو خدا کے ہاتھوں میں نہیں رکھے تو خدا ان کو سزا دے گا، ایسی بات نہیں تھی۔ حالانکہ مردکی اپنی پریشانی کو خدا کے ہاتھ میں نہیں رکھے، مگر پھر بھی خدا ان کے ساتھ تھا اور آگے چل کے بھی خدا ان کا ساتھ دینے والا تھا۔ میرے بھائی اور بہن، اب ہم دیکھیں گے کہ جب خوبصورتی یعنی کہ یہ خوبصورتی کے نمائش میں عورتیں آنے لگے تو ان لوگ یہ عورتوں کو اور بھی خوبصورت کیسا بنا رہے تھے۔
बादशाह के सामने जाने से पहले औरतों की खूबसूरती की तैयारी हो रही थी। हम पढ़ेंगे आयत 12। जब एक एक कुंवारी की बारी आई कि औरतों के दस्तूर के मुताबिक 12 महीने की सफाई के बाद अखस्वेरोस बादशाह के पास जाए, क्योंकि इतने ही दिन उनकी तहारत में लग जाते थे, यानी 6 महीने मुर का तेल लगाने में और 6 महीने में इतर और औरतों की सफाई की चीज़ों के लगाने में। तो यह कलम बताता है कि 12 महीने के सफाई के बाद ये औरतें बादशाह अखस्वेरोस के पास जाते थे। 6 महीने मुर का तेल लगाते थे और 6 महीने इतर। मेरे भाई और बहन, अब आप सोच सकते कि ये औरतों की कितनी सफाई हो रही थी। 12 महीने कोई मामूली वक्त नहीं था। यानी आज एक औरत हरम में आती थी तो 12 महीनों के बाद उन्हें बादशाह का मुंह देखती थी, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बादशाह उसको चुनेगा या नहीं। यानी कि 12 महीने ये औरतों के दिलों में एक खटका बैठा हुआ था कि उन लगा चुने जाएंगे या नहीं। अगर हमको किसी चीज़ का 2 रोज़ इंतज़ार करना होता तो हमको बड़ी मुश्किल की बात दिखती है। अब आप सोच सकते कि 12 महीने ठहरना कितनी तकलीफ की बात है। इसलिए भी मर्दकी जो है अस्तर के लिए परेशान थे। अगर हम खूबसूरती के बारे में देखेंगे, यानी कि जो चीज़ें मुंह पे और हाथों पे इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ पुराने ज़माने के औरतें ये नहीं करती थी, बल्कि पुराने ज़माने के औरतें करने के साथ साथ ये ज़माने के औरतें भी अपने मुंह पे और अपने हाथों और पैरों पे मसाले लगाती हैं। मर्दों के बारे में तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, मगर औरतों के बारे में मेरा ख्याल ये है कि औरतें अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए अपने मुंह पे और हाथों और पैरों पे मसालों का इस्तेमाल करती हैं। बहरहाल यहाँ अगर हम देखेंगे तो अस्तर को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मुर और इतर का इस्तेमाल हुआ, मगर ये सब चीज़ों के बीच में खुदा साथ था। अब हम पढ़ेंगे आयत 13 और 14। तब इस तरह से वो कुंवारी बादशाह के पास जाती थी कि जो कुछ वो चाहती कि हमसरा से बादशाह के महल में ले जाए वो उसको दिया जाता था। शाम को वो जाती थी और सुबह को लौटकर दूसरे हरमसारा में बादशाह के ख्वाजा सराओं शहजाद के सुपुर्द हो जाती थी, जो हरमों का मुहाफिज था। वो बादशाह के पास फिर नहीं जाती थी, मगर जबकि बादशाह उसे चाहता तब वो नाम लेकर बुलाई जाती थी। प्यारे भाई और बहन, 1 साल के तैयारी के बाद हर एक औरत के लिए वो वक़्त आया बादशाह के हुजूरी में जाने के लिए। बादशाह के सामने जाने के लिए एक औरत कुछ भी हासिल कर सकती थी, यानी कि कौन से भी कपड़े पहन के जा सकती थी, कौन सा भी जेवर पहन के जा सकती थी। बहरहाल अब जल्दी से अस्तर का नंबर लगेगा बादशाह के पास जाने का। यहाँ अस्तर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर अस्तर ये खूबसूरती की नुमाइश नहीं जीतती है तो मेरे भाई, अस्तर जो है फारस के बादशाह के हरम सरा की एक हरम बन जाएंगी, जो कि अस्तर के लिए ये एक अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए ये वजह से मर्दकी सहन में अपने दांता चबा लेते हुए टहल रहे थे। मर्दकी को मालूम था कि उन लोग जो हैं खुदा के मर्जी के बाहर हैं, और उनको मालूम है कि जिसको उन्होंने पाले हैं उसके सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन मेरे भाई और बहन, खुदा ये बातों को अपने हाथों में लेने वाला है, ये तो पक्की बात है। आयत 15 पढ़ेंगे। जब मर्दकी के चाचा अबीखाइल की बेटी अस्तर की, जिसे मर्दकी ने अपनी बेटी करके रखा था, बादशाह के पास जाने की बारी आई, तो जो कुछ बादशाह के ख्वाजा सरा और औरतों के मुहाफिज हैजा ने ठहराया था, उसके सिवाय उसने और कुछ न मांगा। और अस्तर उन सब की जिनकी निगाह उस पर पड़ी मंजूर नज़र हुई।
तो जब अस्तर का नंबर आया बादशाह के पास जाने का, तो ये फैसला हो चुका था कि उसकी खूबसूरती खुदा के तरफ से है। अस्तर पहले से खूबसूरत थी, उसको खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं थी। हर कोई जो उसको देखा बोलने लगा, ये औरत है जो जीत चुकी है। अस्तर सारे औरतों से खूबसूरत थी। प्यारे भाई बहन, क्या आप नहीं समझते कि खुदा का हाथ यहाँ काम कर रहा है? मैं तो बोलूँगा बिल्कुल काम कर रहा है। खुदा जो है अस्तर को रानी बनाने वाला है और उन्हें बादशाह की बीवी बनेगी। या मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ खुदा काम करना शुरू करता है तो फिर खुदा को कोई रोक नहीं सकता। बोलने का मतलब यह है कि जब खुदा के कदम आगे बढ़ते हैं तो खुदा फिर वो कदमों को पीछे नहीं लेता, बस आगे बढ़ते जाता है और जो इरादा उन्हें कर चुका है उसको पूरी करता है। आयत 16 और 17 पढ़ेंगे। सो अस्तर अखसुरियस बादशाह के पास उसके शाही महल में उसकी सल्तनत के 7वें साल के 10वें महीने में, जो तेबत महीना है, पहुंचाई गई। और बादशाह ने अस्तर को सब औरतों से ज्यादा प्यार किया और वो उसकी नज़र में उन सब कुंवारियों से ज्यादा अजीज और पसंदीदा ठहरी। बस उसने शाही ताज उसके सिर पर रख दिया और वस्ती की जगह उसे मलिका बनाया। तो मेरे भाई और बहन, जब बादशाह अस्तर को देखा तो आगे चल के उसको दूसरे और भी औरतों को देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो खूबसूरती बादशाह देखा उसका दीवाना होगा। जहां तक बादशाह का सवाल पैदा होता है, खूबसूरती की नुमाइश खत्म हो गई थी। बादशाह को वो औरत मिल गई जो वस्ती के जगह पे आने वाली थी। तो मेरे भाई और बहन, अस्तर को रानी बनाया गया। कितनी अच्छी बात! एक यहूदी कौम से, वो भी एक गैर कौम में रानी बनना, आप सोच सकते, यहाँ सिर्फ खुदा का हाथ काम कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अस्तर यहाँ कैसा जीत सकी? क्या ये एक हादसा था या फिर एक मौका था? मेरे दोस्त, मैंने समझता हूं कि ऐसी बात है, अस्तर का चुने जाना खुदा की तरफ से था। हम अगले बाब में देखेंगे कि खुदा को जो है अपने लोगों को बचाने के लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना ज़रूरी था, और खुदा ये इंतज़ाम करने के लिए आगे बढ़ा, और खुदा ये काम जो है अस्तर को रानी बनाने के ज़रिए से करा। हमको बताया गया है कि बादशाह अस्तर से मोहब्बत रखता था। आयत 18 पढ़ेंगे। और बादशाह ने अपने सब उमरा और मुलाजिमों के लिए एक बड़ी ज़ियाफ़त यानी अस्तर की ज़ियाफ़त की, और सुबह में माफ़ी की और शाह करम के मुताबिक इनाम बांटे। आप लोगों को याद होगा कि ये अस्तर की किताब शुरू होते से होते ज़ियाफ़त के साथ शुरू हुई, और अब हम एक और ज़ियाफ़त देखते हैं, यानी कि अस्तर की ज़ियाफ़त। आप सोच सकते कि यह बादशाह अपना कितना नहीं पैसा खर्चा करा होगा, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मगर जो भी बादशाह को जो है वस्ती के जगह पे एक खूबसूरत रानी की ज़रूरत थी, और बादशाह की ये ज़रूरत पूरी हुई। बोलने का मतलब यह है, जो ख्वाहिश बादशाह जो है अपने दिल में रखा था, वो ख्वाहिश उसकी पूरी हुई। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि क्या अस्तर जो है वस्ती से खूबसूरत थी क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। मैं समझता हूँ कि अस्तर जो है वस्ती से खूबसूरत थी। मेरे दोस्त, शक्लें देने वाला खुदा है और खूबसूरती देने वाला खुदा है, लेकिन मेरा ख्याल से ये शक की बात नहीं है कि अस्तर जो है वस्ती से खूबसूरत थी। आयत 19 पढ़ेंगे। और जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गईं तो मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा था। प्यारे भाई बहन, मर्दकी एक नए ओहदे पे हैं, एक नौकरी नहीं है बल्कि एक ओहदा है। उन्होंने बादशाह के फाटक पे बैठे हैं, यानी कि इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक खाजी हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि पुराने ज़माने में जो अदालत होती थी वो शहर के फाटक के पास होती थी। ज़्यादातर शहर जो है दीवार से घिरे हुए रहते थे, और फाटक के ज़रिए से लोग अंदर और बाहर आया जाया करते थे। तो किसी के बारे में फैसला करना होता तो, या किसी का इंसाफ करना होता,
تو फाटक के पास होता था और शहर के बीच में नहीं। अगर हम देखेंगे तो कलाम में जो है हमको मालूम होगा कि बोआज भी एक कानूनी फैसला करने के लिए फाटक के पास बैठे थे। और अगर हम लूत पे भी गौर करेंगे तो उन्होंने भी फाटक के पास बैठे थे। तो यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो एक दिलचस्पी की बात यह है कि जब अस्तर रानी बन जाती है तो अगली चीज़ जो हम जानते हैं वो ये है कि मर्दकी खाजी बन जाते हैं और उनकी जगह शहर के फाटक पे है। अब मेरे को तो नहीं मालूम है कि मर्दकी के काबिलियत को देख के उनको खाजी बनाया गया या फिर अस्तर जो है बादशाह के कान में ये बात डाली होंगी कि मर्दकी को खाजी बनाओ। ये तो बात मेरे को नहीं मालूम है, मगर ये बात ज़रूर है कि मर्दकी में कुछ अच्छी बात नज़र आ रही थी और शायद बादशाह ये बोला होगा कि खाजी की काबिलियत मर्दकी में नज़र आती है और बादशाह जो है मर्दकी को खाजी बना दिया होगा। ये शक की बात नहीं है कि हर एक इंसान में कुछ ना तो कुछ खराबियां हैं तो कुछ ना तो कुछ अच्छाइयाँ भी दिखेंगे। हर एक इंसान में खराबियां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। मर्दकी में कुछ अच्छाई नज़र आ रही थी, इसलिए खुदा उनको खाजी का ओहदा दिया। तो प्यारे भाई और बहन, मैं आपका हिम्मत और हौसला ये बात से बढ़ाना चाहूँगा कि आप में अच्छाइयाँ भी हैं जिस पे खुदा की नज़र है। बोलने का मतलब यह है कि आपके अच्छाइयों पे जो है खुदा नज़र रख रहा है। तो अब आप सोच सकते कि आपका हिम्मत और हौसला कितना बढ़ना चाहिए। आयत 20 पढ़ेंगे। और अस्तर ने ना तो अपने ख़ानदान और ना अपनी कौम का पता दिया था, जैसा मर्दकी ने उससे ताकीद कर दी थी, इसलिए कि अस्तर मर्दकी का हुक्म ऐसा ही मानती थी जैसा उस वक़्त जब वो उसके यहाँ परवरिश पा रही थी। प्यारे भाई बहन, अस्तर एक ज़बरदस्त औरत है। बादशाह से शादी करने के बाद भी अस्तर वो इंसान के सलाह पे चल रही है जो उसको पाला और बड़ा करा। और मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि मैं ये बात से यकीन करता हूँ कि खुदा के कलाम में मर्दकी एक अच्छा मर्तबा क़ायम करे और हम मर्दकी पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो ये शक की बात नहीं है कि उनमें कुछ अच्छाइयाँ थे। एक लड़की को पालना और बड़ा करना भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे दोस्त, आज कितने लोग ये काम कर सकते हैं। हम ये बोलते कि हमारा ईमान यीशु मसीह में है, मगर क्या किसी को पालना बड़ा करना तो छोड़ो, किसी के ज़रूरत का ख्याल करें ही क्या। मगर मर्दकी अपने कंधों पे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए और खुदा उनके ये अच्छाई को देखा और उनको कामयाब करा। मेरे भाई, आपके अच्छाइयाँ खुदा के नज़रों से हटने वाले नहीं हैं। आपके अच्छाइयों को देख के खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और आपको तरक्की देगा जैसा उन्हें मर्दकी को दिया। अब हम देखते हैं कि जब उन्होंने फाटक पे बैठे हैं तो क्या होता है। आयत 21 से 23 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप की आखिरी आयतें हैं। उन्हीं दिनों में जब मर्दकी बादशाह के फाटक पर बैठा करता था, बादशाह के ख्वाजा सराओं में से जो दरवाजे पर पहरा देते थे, दो शख्सों यानी बिगतान और तरश ने बिगड़कर चाहा कि अखसुरियस बादशाह पर हाथ चलाएं। ये बात मर्दकी को मालूम हुई और उसने अस्तर मलिका को बताई और अस्तर ने मर्दकी का नाम लेकर बादशाह को खबर कर दी। जब उस मामले की तहकीकात की गई और वो बात साबित हुई तो वो दोनों एक दरख्त पर लटका दिए गए और ये बादशाह के सामने तारीख की किताब में लिख लिया गया। प्यारे भाई और बहन, ये एक दिलचस्पी की बात है, यानी कि एक दिलचस्पी का वाक़या है। मर्दकी फाटक के पास बैठे थे, लोग जो हैं अंदर आ रहे थे और बाहर जा रहे थे। मर्दकी दो आदमियों को बात करते हुए सुने और उन लोगों को बादशाह का नाम लेते हुए सुने। उन्होंने जो है गौर से सुनने लगे कि उन लोग क्या बात कर रहे हैं। जब उन्होंने गौर से सुनने लगे तो उनको पता चला कि ये दोनों जो हैं बादशाह को कत्ल करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब उनको ये बात का पता चला तो उन्होंने अस्तर को इस बात की खबर दिए और अस्तर जो है बादशाह के कान तक ये बात पहुंचाई। कैसा? मर्दकी का नाम लेके। और जब तहकीकात करने लगे तो सच्चाई का पता चला और ये दोनों को
پکڑ لیے اور ان کے قتل کا حکم ہوا، اور یہ بات ان کے تاریخ کے کتاب میں لکھی گئی۔ یہ ایک دلچسپی کی بات ہے جو آگے چل کے ہم دیکھیں گے۔ مردکی یہ ایک اچھا کام کرے اور ان کے اچھے کام کے بارے میں بادشاہ کے تاریخ کے کتاب میں لکھ دیا گیا، مگر دلچسپی کی بات یہ ہے کہ مردکی کو یہ اچھے کام کا اجر بادشاہ کے طرف سے نہیں ملا، لیکن ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ مردکی کو اس اچھے کام کے لیے بادشاہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے، مگر اس وقت مردکی کو ان کے اچھے کام کے لیے ان کو نظر انداز کر دیا گیا، مگر یہ پکی بات ہے کہ یہ سارے باتوں کے بیچ میں خدا کام کر رہا تھا۔ بادشاہ تو اس وقت ان کو ان کے اچھے کام کے لیے اجر نہیں دیا، مگر اس وقت ان کو اجر نہیں ملنا ان کے اچھے کے لیے تھا۔ ہمارے زندگی میں جو بھی اچھا یا برا ہوتا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ خدا جو ہے ہمیشہ ہمارے اچھے کے لیے کام کرنے والا خدا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 2، اور اس کے ساتھ یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے سے وقت ہم باب 3 سے غور کرنا شروع کریں گے۔